الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ معزز حاضرین، مساجد کے احکام و مسائل، خصوصاً تعمیر مساجد، مسجدوں کی تعمیر کرنے کے سلسلے میں ہماری گفتگو دو مسئلوں پر ہوئی۔ پہلا مسئلہ کہ کیا کسی نبی ولی کی قبر کے پاس مسجد بنانا کیسا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ آیا تھا کہ مسلمانوں کی قبروں کو یا قبرستان کو منہدم کر کے، توڑ کر، اکھاڑ کر مسجد کو بنانا کیسا ہے۔ اس پر بھی ہماری گفتگو ہو گئی۔ مزید آج جانیں گے کہ کیا ہم زکوٰۃ کے مال سے مسجد تعمیر کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں 8 مصارف یعنی وہ جگہیں جہاں پر مال زکوٰۃ ہم خرچ کر سکتے ہیں، اس کی تعیین کر دی گئی ہے۔ وہ 8 جگہیں کیا ہیں؟ قرآن میں سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 کے اندر اللہ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء، یقیناً صدقہ فقیروں کے لیے ہے۔ اب صدقہ جو ایک مومن خرچ کرتا ہے وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مال زکوٰۃ، دوسرا نفل صدقہ، تیسرا وہ مال جو اس کو اکاؤنٹ یا پھر دیگر طرح سے پیسہ جو رشوت کا یا پھر یہ کہہ لیں کہ جو فنڈ بینک میں پیسے جمع کرنے کی زیادتی کی بنا پر آتا ہے، اس فنڈ کے یہ تیسرا حصہ اگر وہ اس کو خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت جو بتائے ہیں وہ صدقات سے مراد واجبات صدقہ یعنی مال زکوٰۃ۔ اب رہی تیسری بات، ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ پہلا واجبی صدقہ فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے۔ 8 لوگوں کی فہرست ساری ہے، ایک فقیر اور دوسرا مسکین۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے اس سلسلے میں 2 باتیں بتائی ہیں۔ ایک فقیر وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے مانگ لیتا ہے، لوگوں سے مانگ لیتا ہے۔ دوسرا فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس سرے سے بنیادی ضرورتیں نہیں ہوتی ہیں۔ بنیادی ضرورت کیا ہے؟ گھر، کھانا پینا، بچوں کے اخراجات وغیرہ سب بنیادی ضرورت، بیسک ضرورت جس کے پاس نہیں ہوتی مکمل طرح سے، اس کو کہتے ہیں فقیر۔ مسکین کے پاس ضرورت تو ہوتی ہے مگر اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے جس سے گھر کا خرچ چل سکے۔ جیسے مثال کے طور پر گھر کے اخراجات 35,000 روپیہ ہوتے ہیں جبکہ اس کی آمدنی 25,000 یا 28,000 یا 20,000 آمدنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خرچ پورا نہیں کر سکتا۔ تو ایسے فقیر اور ایسے مسکین کو مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور مسکین و فقیر کا جو دوسرا فرق یہ ہے کہ فقیر مانگتا ہے، مسکین لوگوں سے نہیں مانگتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مسکین کے متعلق نازل فرمایا آیت کہ مسکین لوگوں سے کھل کر ہاتھ پھیلا کر مانگتے نہیں ہیں۔ تیسرا والعاملین علیہا،
ज़कात जहां पर जमा होती है, जिसे हम बैतुल माल कहते हैं, उस बैतुल माल में काम करने वाले, चाहे माल ज़कात को उसूल करने वाले हों या माल ज़कात को इकट्ठा करने वाले हों या उसमें लिखकर तहरीर करने वाले हों, जो भी जिस तरह से भी माल को जमा करने की सूरतें निकल सकती हैं, ऐसे आदमी को वल आमिलीन अलैहा, माल इकट्ठा करने वाला, माल ज़कात बाकायदा तौर पर अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहद अबू बकर, खुलफा के दौर में और आज भी अरब में, सऊदी अरब में हर शहर में बाकायदा तौर पर बैतुल माल होता है और हर शहर के अंदर उसके कई ब्रांचेस होते हैं। तीन तीन मोहल्लों पर मुश्तमिल एक बैतुल माल, दो मोहल्लों पर मुश्तमिल एक बैतुल माल बाकायदा तौर पर होता है और उसमें टीम होती है, सिस्टम पर काम करने वाले, हिसाब व किताब रखने वाले और फील्ड वर्क करने वाले, तलाशने वाले कि कौन से घर पर मिस्कीन है, उसकी आमदनी क्या है, उसका किराया कैसे चल रहा है, बाकायदा तौर पर टीम वर्क होता है। तो उसमें काम करने वाले, जमाने वाले, उसका एक हेड होता है, मुदीर होता है। इन तमाम को क्या माले ज़कात दे सकते हैं, यही आयत दलील है। चाहे बतौर तनख्वाह के तौर पर हो या फिर उसके उसके अखराजात कफायत कर जाए, उतना माल दे सकते हैं। वल मुअल्लफति कुलूबुहुम, तालीफ कल्बी के लिए। तालीफ कल्ब से मुराद इसमें तीन तरह के लोग दाखिल होते हैं। नंबर एक, नया नया मुसलमान, जिसे हम नौ मुस्लिम कहते हैं। नया मुसलमान इस्लाम कबूल किया, गरचे वो मालदार है तो माल ज़कात में से उसको कुछ तोहफा तहाइफ दे सकते हैं ताकि तालीफ कल्बी के लिए इस्लाम से और ज्यादा वो मुतासिर हो सके। एक ये हो गया। या फिर ऐसा नौ मुस्लिम इस्लाम लाने की वजह से उसको घर से निकाल दिया गया, बेघर हो गया, या फिर वो खुफिया घर में रह नहीं सकता, उसको इत्मीनान से नमाज व रोजा रखने की जो है उसको नहीं दिया जाता, उसके लिए वहां पर जगह भी मुयसर नहीं है, तो ऐसे नए मुसलमान के लिए घर का बंदोबस्त करना, उसके अखराजात उठाना माले ज़कात में से उठा सकते हैं और ये तालीफ कल्बी है। एक किस्म ये हो गई। दूसरा, काफिर है मगर इस्लाम से बहुत करीब है, इस्लाम से बहुत करीब है, गरचे वो मालदार है, उसकी तालीफ कल्बी इस्लाम की तरफ उसको माइल करने के लिए, इस्लाम की तरफ उसको खींचने के लिए तालीफ कल्बी के तौर पर माले ज़कात में से उस पर भी खर्च कर सकते हैं। ऐसा काफिर इस्लाम से मुतासिर है, मुसलमानों से मुतासिर है, इस्लाम नहीं लाया मगर मुतासिर है इस्लाम से करीब करने के लिए, ताकि वो इस्लाम कबूल कर लें। इस एतबार से, इस पहलू पर उसको माल ज़कात खर्च कर सकते हैं। तीसरा, वो काफिर जो मुसलमानों पर जहां आफतें आती हैं या जहां पर मुसलमानों के हुकूक छीने जाते हैं, ऐसी जगहों पर बराबर मुसलमानों की सफों में खड़कर मुसलमानों को उनके हुकूक दिलाता हो और मुसलमानों पर ढाए गए मजालिम का रद्द करता हो, दिफा करता हो, जैसा कि हमें हिंदुस्तान ही में देखने को मिला। सीएए या नारसी के वक्त कितने हमारे काफिर भाई मुसलमानों की सफों में खड़े थे और मुसलमानों के लिए बाकायदा तौर पर उन्होंने हक लड़ा। तो ऐसे काफिर को भी माले ज़कात दे सकते हैं। तारीफ कल्बी में तीन तरह के लोग आ गए। वो फिर रिकाब, गुलाम को गर्दन छुड़ाने में, मतलब गुलाम आजाद करने में माले ज़कात खर्च कर सकते हैं। अभी ये सिस्टम नहीं है मगर उलमा इस पर क़ियास करते हुए ऐसा मजलूम नाहक उसको कैद खाने में डाल दिया गया हो गलत फहमी की बिना पर वगैरह, तो ऐसे मजलूम मुसलमान को कैद खाने से निकालने के लिए माले ज़कात खर्च कर सकते हैं। वल्गारिमीन, कर्जदार। ऐसा कर्जदार, जो
अदा करने की इस्तिताअत नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर कमाई उसकी 30,000 रुपया है या 25,000 रुपया है, वालिदा बीमार हो गई थी या घर पर बच्चे बीमार हो गए थे, कर्जा ले लिया। कर्जे को एक बड़ा कर्जा था। अब ये कर्जा इसके लिए जैसे 5 लाख 6 लाख एक मुद्दत तक उसको अदा करना नामुमकिन सा है, या फिर उसकी जो मुतअय्यन वक्त है वो बहुत करीब है, तो ऐसे कर्जदार को भी माले ज़कात दे सकते हैं। या फिर ऐसा कर्जदार जो दूसरे का कर्ज डालने के लिए पैसा लगा दिया और खुद जो है कर्ज में डूब गया है, ऐसे आदमी को भी माले ज़कात की रकम से मदद की जा सकती है। वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। अब यहाँ पर उलमा में बस इसी एक टुकड़े को लेकर के उलमा के इज्तिहादात हैं, इख्तिलाफात हैं। वफ़ी सबीलिल्लाह में जो उलमा इकराम कहते हैं कि अगर जिहाद है, जिहाद के ही मैदान में खर्च कर सकते हैं, जिहाद के लिए अगर जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो ऐसे मैदान में खर्च कर सकते हैं। मगर दीगर उलमा इकराम जिहाद की कई अक़साम तकसीम की, कई अक़साम बताए हैं, जिहाद बिल कलम, हाँ, जिहाद बिल लिसान। तो इस पर क़ियास करते हुए हर वो मरकज, हर वो सेंटर जहां पर दीन के काम को, अल्लाह के काम, दावत के काम को आम किया जाता है, ऐसी जगहों पर माले ज़कात खर्च कर सकते हैं। वो बनी सबील, रास्ता कटा हुआ मुसाफिर। तो अल्लाह ये 8 लोगों की लिस्ट बताकर बता रहे हैं, फरीज़तम मिन अल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम, ये अल्लाह ताला की तरफ से फरीज़ा है और अल्लाह ताला इल्म और हिकमत वाला है, बड़े इल्म वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह का इल्म मखलूक के इल्म से कंपेयर नहीं कर सकते, अल्लाह की हिकमत मखलूक की हिकमत से कंपेयर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर सवाल जो मसला शुरू हुआ था कि क्या मस्जिद बनाने के लिए माले ज़कात की रकम दे सकते हैं, तो अक्सर उलमा इकराम इस पर मना करते हैं। बस उलमा की एक टीम है, वो ये कहती है, बस उलमा टीम मतलब बस उलमा जो है इस तरफ इशारा दिए हैं कि वफ़ी सबीलिल्लाह, चूंकि मस्जिद में दावत का काम भी होता है, ऐसी जगह है मस्जिद जहां पर लोग अपने आम सदक़े से मस्जिद बनाने की ताकत नहीं है, करिए वाले हैं, गांव वाले हैं, उतना पैसा ही नहीं है। ऐसी आखिरी सूरत, ऐसा नहीं कि इसको हम रास्ता खोल लें, दरवाजा खोल लें, हर मस्जिद के लिए ज़कात देते जाएं, नौज़ुबिल्लाह। आखिरी सूरत अब्दुल रहमान रहमहुल्लाह अलैह ने अपने फतवे में बाकायदा तौर पर इनसे पूछा गया, उन्होंने इसमें तहरीर फरमाई है अपने फतवे में कि आखिरी सूरत जहां पर लोग अपने आम सदक़ात की ताकत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो ऐसी जगहों पर माले ज़कात की रकम से मस्जिद बना सकते हैं। बाज़ उलमा इकराम इसके कायल हैं। बस मसला इस सिलसिले में यही है। बकिया मजीद हमारे पास कई बातें आएंगी कि मस्जिद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, एक जगह है वहां शहीद कर दिए, दीगर काम के लिए लगा दिए, फिर दूसरी जगह पर मस्जिद बनना, फिर मस्जिद को शहीद करके दोबारा बनना, ये सब इंशाअल्लाह इन सूरतों पर हमारी मस्जिद तामीर मसाजिद में गुफ्तगू होगी। इसी तरह दीगर रिलीफ फंड में, दीगर फंडों में मस्जिद बनाना कैसा है, इस पर इंशाअल्लाह हमारे आगे गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को अल्लाह के घर को तामीर करने की और उसकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।